ओके सो ये सब फॉर्मूलेज है इंटेंसिटी ऑफ लोड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला आपको लिखना है दैट इज स्मॉल डब्ल्यू इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स, गैमा इनटू ए। गैमा मीन्स व्हाट, गैमा इज स्पेसिफिक वेट, ए इज नथिंग बट द एरिया, ए इज व्हाट स्टूडेंट्स, ए इज द एरिया हियर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो इट। फ्लेक्चरल रिजिडिटी, so we'll have your flexural rigidity, ओके सो फ्लेक्चरल रिजिडिटी का जो फॉर्म है दैट इज ई इंटू आई। दिस इज वेरी यूजफुल इन यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में हमको ये यूज करना ही है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का ये भी फॉर्मूला लर्न करना है। ओके स्टार्ट राइटिंग योर स्टूडेंट्स। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, WL क्यूब अपॉन 3ER। ओके चलो जल्द से जल्द ये फॉर्मूला लिख लो and we start solving some questions here. This is your type 1 plain numerical related thing. Fine, I hope that you have written down the formulas, you have written down all the formulas here. Okay, so what we'll do, we'll start solving a numerical here. Okay, numerical solve करो, और देखो ये सब जो न्यूमेरिकल्स में ले रहा हो that is what all are important. Okay, all are important numericals here. ठीक, so first question देखो भाई, first question क्या है। So first of all, we'll read this question. All this question will be asked for 8 to 9 marks. Okay, 8 to 9 marks के लिए ये question पूछा जाएगा. Okay, so what is the question? देखो, एक cantilever beam 60 mm wide, a cantilever beam 60 mm wide by 100 mm high. So ये जो sections रहेगा type 1 के जो section है, in this there will be normal rectangular or normal circle. 60 mm high or 100 mm high and 2 meter long, carries a UDL of, okay, so there is a UDL means small w over entire span. Compute the magnitude and location of maximum flexural stress, determine the type and magnitude of stress in 20 mm from top of the beam at fixed end. अरे बाप रे, okay, बढ़िया क्वेश्चन है. So let us see how to solve. Let us see what should be the approach of solving this question. सबसे पहले cantilever beam दिया है. So what I will do is I will draw here a cantilever beam. This is important. You should know how to draw a diagram. So 60 mm wide और 100 mm high, that will be a rectangle दिया हुआ है. So ये याद रखना है हमेशा स्टूडेंट्स that wide and high, wide means horizontal distance, height means vertical distance दिया है. So the distance that is been given here students is how much, बोलिए, the distance is how much, 60 mm, and here the distance will be how much, the distance will be 100 mm high. Okay, so I will write down here, I will write down 60 mm and I will write down here 100 mm. ठीक है, 2 मीटर लॉन्ग. ओके सो 2 मीटर लॉन्ग, सो कैंटिलीवर का जो डिस्टेंस है, स्पैन जो दिया है, that is how much students, that is 2 meter long and carries a UDL. okay, so this is a fixed end, उसमें UDL रहेगा. so here will be our UDL, this will be UDL students. 3000 मतलब कितना किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, means here the small w is been given as what students, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, 3 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है. परफेक्ट, आगे रीड करो.
कंप्यूट द मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेस। ठीक है, हमें मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेस फाइंड करना है। फ्लेक्चरल स्ट्रेस इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है हमें। We have to find out the maximum bending stress. हमेशा याद रखो, we will write down, we will start with the formula. We'll start with the formula of what? M upon I equals to sigma upon Y. This will be our formula. ये आपका formula रहेगा। M upon I equal to sigma B upon Y. हमें find करना है sigma B, means we will require M, we will require I and we will require here Y. करेक्ट, सिंपल। सो नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड m, देखो मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ सेंड किया है। आई हैव सेंड ए पीडीएफ देयर। सो फॉर ए टाइम बीइंग व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर दैट। ओके, देखो पीडीएफ रहेगा, सो यू कैन सी दैट पीडीएफ ऑफ मोमेंट। इन दैट व्हाट इज बीन गिवन, इफ यू हैव दैट मोमेंट पीडीएफ, जस्ट सी, वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला दिया रहेगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला दिया रहेगा वहां पर स्टूडेंट्स। ओके, सो व्हेन इट इज ए कैंटिलीवर बीम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट व्हाट वी विल डू हियर इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग आउट मोमेंट फाइंड करेंगे। सो मोमेंट का फॉर्मूला बताइए, मोमेंट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? पीडीएफ में मैंने शेयर किया है, पीडीएफ ग्रुप में। ओके, व्हेन इट इज ए कैंटिलीवर एंड व्हेन इट इज यूडीएल, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज WL स्क्वायर अपॉन 2। WL स्क्वायर अपॉन 2 उसका फॉर्मूला है। देखो पीडीएफ में देखो, WL स्क्वायर अपॉन 2 फॉर्मूला है। W का वैल्यू कितना है? 3। लेंथ कितना है? 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 3 are 12 अपॉन 2 विल बी, द आंसर विल बी 6 स्टूडेंट्स, 6 रहेगा। सो इसका यूनिट है किलो न्यूटन मीटर। ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड हियर। आपका जो मोमेंट इस फॉर्मूला से निकाल रहे हो, इसका हमेशा जो यूनिट आएगा वो एक तो न्यूटन मीटर आएगा या फिर किलो न्यूटन मीटर आएगा। बट इन सॉलिड मैकेनिक्स वी वांट ऑल द यूनिट इन न्यूटन mm, सो इसको भी न्यूटन mm में कन्वर्ट करना तो पड़ेगा। So therefore the value of m will be 6। 1 किलो न्यूटन मतलब कितना न्यूटन स्टूडेंट्स? 10⁻³ and 1 मीटर is how much mm? 10⁻³ mm। So किलो न्यूटन का न्यूटन हो गया, मीटर का mm भी हो गया। So 3 + 3 will be 6। So what is the answer of m? It will be 6 into 10⁻6 Newton into mm। I hope that you are understanding this very well। सो मोमेंट का ये आंसर आ गया 6 into 10⁻6 न्यूटन into mm। करेक्ट, तो दिस विल बी दी फॉर्मूला। ठीक है भाई, सो सबसे पहले m तो हमने फाइंड किया है, टिक मार्क करो। चलिए नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो स्टेप नंबर 2 वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही सिंपल है, टी सेक्शन नहीं है, आई सेक्शन नहीं है। डायरेक्टली वी हैव टू फाइंड आउट हियर द x सेक्शन। हियर I(x) का एक ही फॉर्मूला रहेगा, I का एक ही फॉर्मूला रहेगा, दैट विल बी BD³/12। क्यों BD³/12? क्योंकि रेक्टेंगल है। सो देयरफॉर I इक्वल्स टू ब्रेड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कल एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? 60। तो 60 इंटू डेप्थ की वैल्यू कितना है? 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। चलो बोलिए आंसर। आई वांट आंसर इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू हैव कैलकुलेटर इन योर हैंड। सबका आंसर आना चाहिए। सिक्सटी इंटू 100 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का आंसर क्या आया है? ओके, आकाश ने दिया आंसर, अफजल ने भी दिया आंसर। 50 इंटू 10⁻6 नहीं है डियर, फिर से एक बार करो, फिर से एक बार करके देखो। 60 इंटू 100 क्यूब करो, उसको डिवाइड बाय 12। यस जगन, करेक्ट, गुड। 5 इंटू 10⁻6 आ रहा है आंसर। 5 इंटू 10⁻6
mm⁴ आएगा आपका आंसर। ओके, सो द वैल्यू ऑफ आई भी मिल गया। वैल्यू ऑफ आई 5 इंटू 10⁶ है भाई, देखो। ठीक है, सो स्टेप नंबर 2, यस यस अभिषेक, करेक्ट, गुड। सो स्टेप नंबर 2 इज ऑल्सो ओवर। हमने आई भी फाइंड किए हैं, सो चलिए टिक मार्क करिए, आई भी फाइंड किए हैं। नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू फाइंड इन ऑर्डर टू फाइंड सिग्मा बी, वाई। सो स्टेप नंबर 3 विल बी वाई। वाई का मीनिंग क्या है? न्यूट्रल एक्सिस से बेस तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी वाई। सो इफ यू विल सी हियर स्टूडेंट्स, ओके, न्यूट्रल एक्सिस से बेस तक का जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी वाई। टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। वाई का वैल्यू क्या रहेगा? द वाई वैल्यू विल बी, यस, 100/2। 100/2 रहेगा। सो 100/2 विल अकाउंट टू व्हाट आंसर? 50 mm। इट विल अकाउंट टू 50 mm। ग्रेट, ठीक है, y भी है, y भी है, परफेक्ट। सो ऑल दी वैल्यूज आर देयर, ऑल दी वैल्यूज आर देयर। अभी सिर्फ पुट करिए। सो बोलो m की वैल्यू क्या आ गई है? m की वैल्यू है 6 इंटू 10⁶ अपॉन i का वैल्यू है 5 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू सिग्मा बी हमें फाइंड करना है, और y का वैल्यू है 50। चलिए बोलो, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन आंसर। 10⁶ 10⁶ कैंसिल होगा, डिवाइड डायरेक्टली कैल्सियम में मत डालो, थोड़ा सोचो भी। और सिग्मा बी का आंसर मुझे चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का, फ्लेक्चरल स्ट्रेस का आंसर चाहिए। व्हाट द आंसर इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी? व्हाट विल बी द आंसर? परफेक्ट जगन, यस, 60 आंसर आया कि देखो, यस साइनाथ करेक्ट है, यस जेड, परफेक्ट परफेक्ट, 60 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, करेक्ट अफजल, यस। तो सिग्मा बी का जो आंसर है दैट इज 60 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ओके, वाई एम एम स्क्वायर आई एम यूजिंग हियर? बिकॉज स्ट्रेस हम फाइंड कर रहे हैं और स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर एम एम का स्क्वायर। ग्रेट, सो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया भाई। देखो, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमने फाइंड किए, इधर इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और इट इज कॉल्ड एज फ्लेक्चरल स्ट्रेस। सो पार्ट 1 तो हो गया है, पार्ट 1 तो हो गया है। सेकेंड पार्ट रीड करिए, सेकेंड पार्ट रीड करिए। डिटरमाइन द टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, डिटरमाइन द टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इन अ फाइबर 20 mm from top of the beam। ओके, टॉप ऑफ द बीम कितना mm? 20 mm से आपको स्ट्रेस फाइंड करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस हियर स्टूडेंट्स। ओके, सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल अगेन टेक दिस डायग्राम हियर। डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ये था आपका डायग्राम स्टूडेंट्स। सो विच टाइप ऑफ बीम इज देयर? कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम। टेल मी, आई हैव टोल्ड यू इन फर्स्ट लेक्चर, कैंटिलीवर बीम के लिए व्हाट विल बी द डायग्राम? शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या रहेगा? यहां से तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। कैंटिलीवर बीम अपर लेयर में क्या रहेगा? टेंसाइल क्या कॉम्प्रेसिव? चलिए देखते हैं कौन पढ़ाई कर रहा है। ओके, टेंसाइल रहेगा या कॉम्प्रेसिव रहेगा? बोलिए। फॉर कैंटिलीवर बीम इट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? इट विल बी अपर लेयर में क्या रहेगा? टेंसाइल। सो वेयर द टेंसाइल विल बी? यस, वेयर द टेंसाइल विल बी? द टेंसाइल विल बी हियर। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करो, और बॉटम लेयर में क्या रहेगा? कॉम्प्रेसिव। दोनों को ज्वाइन कर लो। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये आना ही चाहिए। Okay, this will be what? This will be sigma t and this will be sigma c. So now tell me what this distance will be. ये distance क्या रहेगा? बोलिए, what will be this distance students? Good, what will be this distance? yt क्या yc रहेगा? Yes, it is what students? It is yc, perfect आकाश, yc। ओके, और ये ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है दैट विल बी व्हाट?
that will be yt. Are you understanding? This part will be what? This part will be yt here. ये yt रहेगा. I hope that you are understanding this. ये हो गया yt. But now what they are asking us is to find out stress 20 mm from the top. कि भाई जो 20 mm है, एक मिनट ध्यान दो यहाँ पर, एक मिनट, क्या बात है, 20 mm टॉप से आपको स्ट्रेस फाइंड करना है. मीन्स यहां से 20 mm के डिस्टेंस में आपको फाइंड करना है स्ट्रेस. ये स्ट्रेस फाइंड करना है. कौन सा स्ट्रेस? ये स्ट्रेस फाइंड करना है. सो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस कितना है? 100 है ना. ओके, सो दिस डिस्टेंस इज 100. सो ये हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हाफ डिस्टेंस 50 होगा. सो दिस विल बी हाउ मच स्टूडेंट्स? दिस विल बी 50 mm. ये हो गया आपका 50 mm. बट यहां से 20 है. सो न्यूट्रल एक्सिस से कितना mm बचा? न्यूट्रल एक्सिस से कितना mm बचा स्टूडेंट्स? 30 mm. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 30 mm बचा है. हमें स्ट्रेस फाइंड करना है. सो बेसिक फॉर्मूला क्या है? m अपॉन i इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन y. ओके, मोमेंट का आंसर कितना है? मोमेंट का आंसर 6 इंटू 10⁶. आई का आंसर था 5 इंटू 10⁶. हमें स्ट्रेस फाइंड करना है, बट उसके लिए y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? ओके, y का वैल्यू बोलो स्टूडेंट्स. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y हियर? न्यूट्रल एक्सिस से ही आपको डिस्टेंस लेना है. न्यूट्रल एक्सिस से ही डिस्टेंस क्या है? 30 है. सो आई विल राइट डाउन हियर वैल्यू 30. हे बघा, हा जो y डिस्टन्स राहणार आहे, हा y नेहमी कुठून राहणार आहे? न्यूट्रल ऍक्सिस पासून. फ्रॉम वेअर? इट विल बी फ्रॉम द न्यूट्रल ऍक्सिस. सो दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूट्रल ऍक्सिस से रहना चाहिए. सो सिग्मा अपॉन 30. सो नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस का वैल्यू बोलिए. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. स्क्रीन विजिबल है क्या स्टूडेंट्स? स्क्रीन दिख रहा है सबको? पॉज हो रहा है? ओके ओके, एवरीवन इज आंसरिंग, मतलब स्क्रीन दिख रहा है. ओके, जस्ट सी अगर आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. 36. ओके, 36 आंसर भी आ गया है. 36, क्या बात है. सो सिग्मा बी का जो आंसर है दैट इज हाउ मच? दैट इज 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसका भी लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं. देखिए, सिग्मा बी 36 है. 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, मैक्सिमम कितना था? देखिए, मैक्सिमम था 60. मैक्सिमम था 60. सो ये 60 था. ये सिग्मा टी कितना था स्टूडेंट्स? 60. और ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस कितना आया? देखिए 36. सो ये स्ट्रेस कितना है? 36. हुआ क्या? डिक्रीज हो रहा है क्या? देखिए. सो इस प्रकार से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो whether your answer is correct or not students. I hope that you are understanding it very properly. ओके, तो फिर से मिनिमाइज करते हैं. क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस फाइंड करने बोला था, दैट इज सिग्मा बी. वो सिग्मा बी हमने फाइंड किए 60. और उसके बाद टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इन ए फाइबर ऑफ 20 mm फ्रॉम द टॉप. टॉप से कितना mm लिया? 20 mm लिया स्टूडेंट्स. फ्रॉम टॉप से 20 mm लिया एंड देन सिग्मा बी फाइंड किया. चलो ठीक है, ग्रेट. बोलिए, कुछ डाउट है क्या स्टूडेंट्स? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन. Okay, done. So we'll move on to the next question. We'll move on to the next question here. No doubt. Okay. Fine. Explanation फिर से ये वीडियो शेयर कर दूंगा मैं. All this video will be available students. Okay, available रहेगा सब. And this is the last demo session students. पेड ऑनलाइन बैच ये सेपरेटली मैंने ग्रुप क्रिएट किया है.
इफ नो वन इज ज्वाइंट येट यू हैव टू ज्वाइन दैट, अभी से ग्रुप का लिंक वहां पर ही मिलेगा। ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अभी पीवाई की न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ऑल दैट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इज ऑल्सो गिवन। ओके, सो दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई विल पुट इन द मेन ग्रुप, उसके बाद सब पेड ऑनलाइन बैच के ग्रुप में रहेगा। फाइन, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम दिया हुआ है दैट आई एम ड्रॉइंग नाउ, ये डायग्राम दिया हुआ है। सो क्वेश्चन रीड करो, क्या है क्वेश्चन? ए बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 mm बाय 100 mm। ओके, इसमें भी एक ट्रिक है, बहुत बढ़िया से बढ़िया ट्रिक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब 7 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन है, ट्रस्ट में। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 mm by 100 mm, 100 mm by 100 mm means which section it will be? It will be rectangular section, it will be a rectangular section students, rectangular section दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले तो ये मीटर लिख लेता हूँ, कितना दिया है, दैट इज 2 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर और ये भी डिस्टेंस 2 मीटर। एंड द वैल्यू हियर, and the value here is how much? 100 kilonewton, and here also it is how much? 100 kilonewton। ये पॉइंट दिया हुआ है A, ये पॉइंट दिया हुआ है B। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, पीडीएफ ओपन करके देखो, क्या इस टाइप का M का वैल्यू है या नहीं? टेल मी, M का वैल्यू है या नहीं, जस्ट एक बार चेक कर लो। ओके, ऐसा डायग्राम जब दो दो फोर्स रहेगा, पीडीएफ में है क्या? नहीं है। गुड आकाश, ग्रेट। ओके, सो इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट देयर इन द पीडीएफ, सो हमें नॉर्मल कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर से। ए बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 mm by 100 mm। ओके, सो 100 mm by 100 mm मींस अगेन व्हाट इज बीन गिवन? रेक्टेंगल दिया है। व्हाट आई टोल्ड यू, फर्स्ट जो वर्डिंग रहेगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, और जो सेकंड रहेगा वो वर्टिकल, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू हाइट रहेगा। सो दिस विल बी योर 100 mm, ये रहेगा आपका 100 mm का डिस्टेंस, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? दिस डिस्टेंस विल बी 200 mm, दिस डिस्टेंस विल बी आर 200 mm। क्या बात है, ये हो गया आपका डिस्टेंस 200 mm। ओके, सिंपली सपोर्टेड एट बोथ एंड्स। पिछला जो क्वेश्चन था वो था कैंटिलीवर का, ये क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कौन सा है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। It carries two concentrated load of 100 kilonewton each acting at 2 meter distance from each support। हर एक सपोर्ट से कितना डिस्टेंस में 100 किलो न्यूटन है? 2 मीटर से। स्पैन ऑफ द बीम देखो भाई, ये टोटल कितना मीटर? ये टोटल 7 मीटर है। डिटरमाइन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, क्या बात है, हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ग्रेट, सो वी विल स्टार्ट अगेन विथ आवर बेसिक फॉर्मूला। बोलिए बेसिक फॉर्मूला क्या था? बेसिक फॉर्मूला क्या था? m अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा बी अपॉन वाई, सिग्मा बी अपॉन वाई, ठीक है। ये सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना है, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 विल बी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। m मतलब क्या? बेंडिंग मोमेंट, मीन्स हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला? अभी ये ए बी, ये सी डी। चलिए एक ट्रिक बताता हूं। सी, नॉर्मल एसएफडी बीएमडी में हमें सॉल्व किया, मोमेंट एट ए निकालना पड़ता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालना पड़ता है, एंड देन आई कैन फाइंड आर ए आर बी, एंड देन आई विल फाइंड आउट सेपरेट मोमेंट। यहां पर ये करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां पर एक बात आपको याद रखना है, अगर समझो लोड सेम है, लोड सेम है और सपोर्ट से उसका डिस्टेंस भी सेम है, सो आर ए और आर बी डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो। आर ए एंड आर बी यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला व्हाट? दोनों को ऐड करो, 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय व्हाट स्टूडेंट्स? 2, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आ गया भाई? आंसर आ गया आपका 100 किलो न्यूटन।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझा? फिर से एक बार देखिए देखिए, अगर 100 किलो न्यूटन रहेगा एंड द डिस्टेंस इज 2 मीटर, स्टूडेंट्स डिस्टेंस इज हाउ मच मीटर? 2 मीटर, सेम डिस्टेंस है, सो डायरेक्टली आर ए आर भी मिल गया, उसका वैल्यू भी 100 किलो न्यूटन है। सो यहाँ पर मैं कितना किलो न्यूटन लिख लेता हूँ? 100 किलो न्यूटन लिख लेता हूँ, 100 किलो न्यूटन यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। आर ए आर बी, बट आप सोच रहे होंगे सर आर ए आर बी की जरूरत ही क्या है, हमें फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट। सो मोमेंट एट सी, मोमेंट एट डी फाइंड करना है, जो भी मैक्सिमम रहेगा उसका वैल्यू आपको मिलना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसका वैल्यू आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। सो हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू सॉल्व इट, लेट अस सी। मोमेंट एट सी बताइए, मोमेंट एट सी क्या रहेगा? सो वन मोर ट्रिक, अगर ये सेम है तो मोमेंट और सी और डी का आंसर भी सेम रहेगा, इसलिए मोमेंट एट डी निकालिए। मोमेंट एट डी मतलब देखो ये 100 किलो न्यूटन जा रहा है डी के पास, ओके। सो मोमेंट का फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है भाई? फोर्स कितना है? ओके, फोर्स इज 100 किलो न्यूटन, 100 इंटू टू, 100 इंटू टू, ओके, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, 100 इंटू टू इट विल बी हाउ मच? 200। देखो भाई यूनिट क्या है? किलो न्यूटन और मीटर, सो लिखते वक्त यूनिट क्या लिखोगे? किलो न्यूटन मीटर। गलती से अगर यूनिट आपने चेंज किया तो पूरा मार्क्स चले जाएंगे, इट विल बी डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, ओके। सो मोमेंट एट सी एंड डी ये कितना आ गया? ये आ गया 200 किलो न्यूटन। मतलब लेते टाइम मोमेंट आप क्या लोगे? 200 किलो न्यूटन का न्यूटन 10⁻³ मीटर का mm भी 10⁻³ रहेगा। सो मोमेंट का जो आंसर आया है फाइनली दैट इज 200 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। वॉट आई टोल्ड यू, यहां से जो आंसर फाइंड होगा आपका, यहां से जो आंसर फाइंड होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी ऑलवेज व्हाट? दैट विल बी ऑलवेज इन किलो न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन मीटर में रहेगा। एक तो किलो न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन मीटर में रहेगा, ओके। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स? वैल्यू ऑफ एम रहेगा। इसमें कुछ डाउट है क्या? पूछिए, ओके, पूछिए, बिंदास डाउट पूछिए। एम में कुछ तकलीफ हुआ क्या फाइंड करने में? दिस इज ए ट्रिक हियर, नहीं तो फिर आपको मोमेंट एफ ऑफ वाई ये सब फाइंड करना पड़ता। सो इंपॉर्टेंट क्या? इवन इफ यू नो ऑल द थिंग, इंपॉर्टेंट टाइमिंग का रहेगा। टाइमिंग जितना जल्द से जल्द आप करोगे उतना ही आपका पेपर ज्यादा सॉल्व होगा, उतना ही पासिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 में हमने m फाइंड किए हैं, okay, we have find out the value of what students? Value of m here. Now we will solve for what? We will solve for the I, moment of inertia find करूंगा मैं। so moment of inertia, so step number 2 बोलिए, step number 2 क्या रहेगा? moment of inertia, moment of inertia का फॉर्मूला बताइए, moment of inertia का फॉर्मूला BD³/12, ओके। एक स्टूडेंट ने पूछा अगर सर लोड और डिस्टेंस सेम नहीं है तो फिर क्या होगा? ओके, सो उसमें आपको मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा, रेगुलर मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा। वो भी कैसे फाइंड करते हैं दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी, ठीक है। ग्रेट। सो आई का आंसर बताइए जल्द से जल्द। ब्रेड्थ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 ले लो भाई। डेप्थ कितना है? 200। सो 200 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। टेल मी द वैल्यू ऑफ आई हियर। आई का वैल्यू क्या है बताइए। ओके, जेड का आंसर आ गया है, क्या बात है। 66.67 इंटू 10⁻⁶, परफेक्ट आंसर डियर। 66.67 इंटू 10⁻⁶, इसका जो यूनिट है, द यूनिट इज mm⁻⁴, द यूनिट इज mm⁻⁴ स्टूडेंट्स, ओके। सो इन दिस वे वी हैड कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ व्हाट?
वी आर कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ आई हियर, आई का वैल्यू मिल गया है, आई का वैल्यू कैलकुलेट किया है। सो लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, आपको फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है बताइए? वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस y। y मतलब क्या? y इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द बेस, बेस से न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो रहेगा y। ओके, सो दिस डिस्टेंस विल बी आर y ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो y का वैल्यू बताइए, 200/2 डायरेक्टली लिख लेता हूं, हाउ मच mm? 100 mm, करेक्ट, सबका आंसर करेक्ट आया है, क्या बात है, गुड। y का भी आंसर मिल गया है, y का भी आंसर मिल गया है। द लास्ट स्टेप इज टू पुट इन दिस फॉर्मूला, पुट इन दिस फॉर्मूला, बताइए कैसे करना है? m अपॉन आई, m का वैल्यू बताइए कितना है? 200 इंटू 10⁶ अपॉन आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फाइंड किया है 66.67 इंटू 10⁶। हमें फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस करना है सिग्मा बी, और y का डिस्टेंस कितना है? 100। सो आई वांट द फाइनल आंसर ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, सो दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे स्टेप आप फॉलो करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके ओके, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। साइनाथ का आंसर 300 आया, आकाश का 299.98, क्या बात है, आंसर करेक्ट है। द आंसर इज 300 मेगापास्कल। मेगापास्कल का मीनिंग क्या हुआ? न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इन दिस वे वी आर फाइंड आउट द बेंडिंग स्ट्रेस। सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस प्लेन रिलेटेड न्यूमेरिकल, प्लेन रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है। इन दिस वे यू हैव टू कीप द अप्रोच। Okay, this is the numerical that we had solved. But if you want to draw, here the stress distribution diagram, कैसे ड्रॉ करोगे बताइए, कैसे ड्रॉ करोगे? लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ दैट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम है स्टूडेंट, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अपर लेयर में क्या आएगा? अपर लेयर में आएगा कॉम्प्रेशन, अपर लेयर में आएगा कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन राइट साइड में ड्रॉ करना है और टेंशन लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है। दिस विल बी द केस। लिखते वक्त कैसे लिखोगे? ध्यान दो जरा, सिग्मा सी सिग्मा टी, ये जो डिस्टेंस रहेगा दिस विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? दिस विल बी वाई टी, एंड दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट? दिस डिस्टेंस विल बी सॉरी वाई सी रहेगा। डायग्राम कैरीज मार्क्स, diagrams carries marks, it is very important, it is very important। Great, great, good। So now tell me students, if you have any doubt in this second question में कुछ doubt है क्या? देखिए, if you have any doubt in the second question you can ask me, no worries at all। okay, सब क्वेश्चंस करने हैं, सब बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सॉरी, ओके, कुछ डाउट है क्या स्टूडेंट्स? पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज विल गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, ठीक है, ग्रेट। तो सबको पता चला है न्यूमेरिकल, ठीक है। कास्ट आयरन पाइप, दिस इज ए PYQ क्वेश्चन, ये है आपका PYQ क्वेश्चन। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फिर से एक बार फॉर्मूलास देख लेते हैं भाई, फॉर्मूलास क्या है। 1 2 दो क्वेश्चन तो बढ़िया से बढ़िया सॉल्व हुए। नो डाउट, ग्रेट। सो प्लेन न्यूमेरिकल में वन मोर फॉर्मूला आई विल लाइक टू ऐड हियर। ये जो गैमा है ना स्टूडेंट्स, गैमा का और एक फॉर्मूला है, okay, that is rho into g। okay, should write this also, gamma equals to rho into what students? rho into g रहेगा, ठीक है।
हाँ ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ लोड पर यूनिट वेट, स्मॉल w का आंसर क्या है, गैमा इंटू ए। ओके, दिस विल बी गैमा इंटू ए। गैमा स्पेसिफिक वेट, ए मतलब एरिया, इतना याद रखो भाई, गैमा का रो इंटू जी या फिर गैमा इंटू ए है। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व किए, और टुडेज लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 भी हम सॉल्व कर देंगे। क्या बात है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा, सीखने को मिलेगा आपको। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ओके, दिस इज नथिंग बट पीवाईक्यू क्वेश्चन। कितने मार्क्स को पूछा गया था स्टूडेंट्स? 9 मार्क्स। दिस वाज आस्क्ड फॉर 9 मार्क्स। सो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। So a cast iron of internal diameter 450 mm is 15 mm thick and is supported at a span of 8 meter। ठीक है, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। इंटरनल डायमीटर मतलब ये सर्कल हो गया स्टूडेंट्स। ओके, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ए सर्कल। सो यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल वेरी प्रॉपरली। नाउ नो रेक्टेंगल इज देयर। ठीक है, सो इंटरनल डायमीटर दिया है, थिकनेस भी दिया है। सो नाउ इंटरनल डायमीटर इज गिवन एज 450 mm थिक। सो ये जो डायमीटर रहेगा, इंटरनल का जो डायमीटर रहेगा स्टूडेंट्स, दैट डायमीटर विल बी हाउ मच, 450 mm। ओके, सो 450 mm आई विल राइट डाउन स्मॉल d एज 450 mm। तो गिवन डेटा लिखते हैं, स्मॉल d इक्वल्स टू 450 mm। स्टेप बाय स्टेप वी विल सॉल्व, स्टेप बाय स्टेप वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल हियर। थिकनेस कितना है, 15, मतलब यहां से भी 15 है एंड डाउनवर्ड्स ऑल्सो इट इज व्हाट, 15 15 15। ओके, सो टोटल जो डायमीटर है, एक्सटर्नल जो डायमीटर है, इस डायमीटर विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, विल बी हाउ मच, 450 प्लस 30 480। सो ये डिस्टेंस लिख लेते हैं भाई 480 mm। ओके, सो कैपिटल डी का वैल्यू देखिए, कैपिटल डी का वैल्यू है 480 mm। ठीक है, ग्रेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, विल फाइंड आउट, रीड करते हैं भाई आगे का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस। ओके, सो अगेन क्या पूछा गया है, मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करने पूछा गया है व्हेन द पाइप इज फुल ऑफ वाटर। परफेक्ट। स्पेसिफिक वेट ऑफ आयरन दिया है एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर भी दिया है, वेरी इंटरेस्टिंग। सो स्पेसिफिक वेट दिया है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वी विल सी हियर। सो आर बेसिक फॉर्मूला स्टूडेंट्स, बेसिक फॉर्मूला नहीं भूलना है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, m अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा बी अपॉन वाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग, सिग्मा बी अपॉन वाई है। सो स्टेप नंबर 1 में मोमेंट फाइंड करते हैं, बट ये सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, इट इज व्हाट स्टूडेंट्स, इट इज सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, इट इज व्हाट स्टूडेंट्स, इट इज सिंपली सपोर्टेड। इट इज सिंपली सपोर्टेड, क्या बात है। और स्पैन कितना है, स्पैन मींस द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट इज बीन गिवन हियर, दैट इज हाउ मच, दैट इज 8 मीटर। 8 मीटर दिया हुआ है। सो आई विल राइट डाउन हियर 8 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड योर मैक्सिमम स्ट्रेस। सो दिस सपोर्टेड एट ए स्पैन इज बीन गिवन, टेक स्पेसिफिक वेट ऑफ कास्ट आयरन इज आल्सो गिवन। सो एक चीज याद रखना है, अगर लोड नहीं दिया है वी हैव टू कंसीडर ए यूडीएल। हमें क्या कंसीडर करना है, यूडीएल मींस व्हाट स्टूडेंट्स, क्या कंसीडर करना पड़ेगा, स्मॉल डब्ल्यू। ध्यान दो यहाँ पर, ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है भाई, पीवाईक्यू का क्वेश्चन, रिस्क मत लो। इफ द load is not given we have to assume it as what, the UDL। so step number 1, step number 1 में सबसे पहले तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट आपको फाइंड करना है। सो बेंडिंग मोमेंट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्म है देखिए, पीडीएफ में देखिए, पीडीएफ में लिखा है सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल।
सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल के लिए है W स्क्वायर बाय 8. ओके, इट इज व्हाट स्टूडेंट्स, इट इज W L स्क्वायर अपॉन 8 है. L है पर W है क्या, नहीं. फॉर्मूला बताइए, W का फॉर्मूला गैमा इंटू ए, फॉर्मूला लिख के दिया है, गैमा इंटू व्हाट स्टूडेंट्स, गैमा इंटू ए. तो इसमें कास्ट आया है और वाटर भी दिया है. सो जो स्मॉल w रहेगा स्टूडेंट्स, ध्यान दो यहाँ पर, जो स्मॉल w रहेगा वो वाटर का रहेगा और कास्ट आयन का भी रहेगा. सो वह कैसे लिखोगे, गैमा इंटू ये वाटर इंटू एरिया ऑफ वाटर प्लस किसको ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, कास्ट आयन इंटू एरिया ऑफ कास्ट आयन. क्यों भाई, देखो फॉर्मूला है, W ने दिया है, W का फॉर्मूला गैमा इंटू ए. ये कभी याद रखना है जब भी गैमा दिया हुआ रहेगा. स्पेसिफिक वेट व्हेनेवर इट इज गिवन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. आपके पास गैमा W है, गैमा कास्ट आयन है, बट AW है नहीं, ACI है नहीं. सो वी हैव टू सॉल्व इट, वी हैव टू फाइंड इट. एरिया ऑफ वाटर फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ वाटर. सो देखो द पाइप इज फुल ऑफ वाटर. ओके, फुल ऑफ वाटर है मतलब ये डायमीटर में रहेगा, इंटरनल डायमीटर में है, फुल ऑफ वाटर है स्टूडेंट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग. ये तो थिकनेस है ना भाई, थिकनेस में थोड़ी वाटर फ्लो होगा, इंटरनल पाइप से वाटर फ्लो होगा. ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, AW. बोलिए फॉर्मूला क्या रहेगा फिर, पाई बाय 4D का स्क्वायर. D कितना है, 450, 450 का स्क्वायर. ओके, सो 450 mm है, mm का मीटर में कन्वर्जन करना पड़ेगा. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों भाई, क्योंकि गैमा का यूनिट देखो मीटर है, मीटर. सो एरिया का यूनिट भी क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर ही चाहिए. सो दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव टोल्ड यू इस यूनिट रहेगा, इसका जो यूनिट रहेगा एक तो किलो न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन मीटर रहेगा. यहाँ पर न्यूटन मीटर है, क्यों, क्योंकि न्यूटन दिया हुआ है. सो आंसर आपको मीटर में लेना है. सो पाई बाय 4 0.45 का स्क्वायर कितना आता है, 0.159, 0.159 मीटर स्क्वायर. हो गया. AW तो फाइंड हुआ है. So after that cast iron we are going to find out area of cast iron. Okay, अभी cast iron देखो, cast iron का ये एरिया है, this area is the cast iron area. So who will tell me, perfect sign 0.159. great. So now tell me cast iron का एरिया क्या रहेगा, what will be the area of cast iron, PYQ है. सो हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस करना पड़ेगा. इसका मीनिंग क्या है, पाई बाय 4 कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, मतलब 0.48 का स्क्वायर माइनस 0.45 का स्क्वायर. आर यू अंडरस्टैंडिंग. ये है आपका कास्ट आयन फॉर्मूला, ये है आपका एरिया ऑफ कास्ट आयन का फॉर्मूला, क्योंकि ये जो है थिकनेस दिया हुआ है. सो 0.48 स्क्वायर माइनस 0.45 स्क्वायर, द आंसर इज 0.0219 मीटर स्क्वायर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. देखो एरिया ऑफ वाटर निकाले है, एरिया ऑफ वाटर वी हैड फाइंड आउट, एंड एरिया ऑफ कास्ट आयन भी मिला है, एरिया ऑफ कास्ट आयन भी मिला है. सो जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला. ओके, यहां से आपको W मिल जाएगा और ये W से मोमेंट मिल जाएगा. ओके, मोमेंट मिलेगा आपको. ठीक. So small w, I will write here small w equals to, बताइए gamma of water fixed 9810 into area of water कितना है 0.159. so यहाँ पर लिखो 0.159. are you understanding. प्लस है भाई, प्लस. बताइए gamma of cast iron कितना है, gamma of cast iron 71600 इंटू ए कास्ट आयन कितना है 0.0219. सो यहां से आपको स्मॉल w मिल जाएगा, यहां से आपको स्मॉल w मिलेगा. बताइए, कॅल्क्युलेट करो. सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट करा व्यवस्थित. नाही समजते विचारते मेसेज टाका. PYQ क्वेश्चन आहे, याच्यामध्ये w फाइंड करण्यासाठी गॅमा इंटू ए चा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. वी हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला गॅमा इंटू ए.
बट दोनों दिया है, कास्ट आयन और वाटर दिया है गामा, इसलिए दोनों को ऐड किया मैं, गामा इंटू ए। ओके, जेड का आंसर आ गया 312। ओके ग्रेट ग्रेट, 3127.83, 3127.83 यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर, यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमने एम फाइंड नहीं किया है, हमने डब्ल्यू फाइंड किया है। हमने क्या फाइंड किया है? डब्ल्यू। अभी ये जो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू कहां पर पुट करना पड़ेगा बताइए? मोमेंट पे, मोमेंट में। सो कैपिटल एम मिल जाएगा। सो कैपिटल एम का फॉर्मूला डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है भाई? 3127.83 इंटू लेंथ, लेंथ 8 मीटर है, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है 8 का स्क्वायर लिख लेता, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8। हियर मुझे मोमेंट का आंसर चाहिए, मोमेंट आंसर, आई वांट द मोमेंट आंसर। समझा? डब्ल्यू, ये डब्ल्यू यहां पर पुट करके एम मिला, मोमेंट मिला। ओके ओके, आकाश का आंसर है 25022, क्या बात है, गुड। ये न्यूटन में आया। सो ये हो गया 25.02 इंटू 10⁻³ क्या बात है, 25.02 इंटू 10⁻³ इसका यूनिट न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर, बट हमें न्यूटन एमएम में चाहिए। सो न्यूटन एज इट इज रहने दो भाई, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, बट मीटर का एमएम में कैसे करेंगे? 10⁻³ 10⁻³ 10 क्या होगा? ये हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन एमएम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए लास्ट एंड तक, एंड आपको किस में आना चाहिए? न्यूटन एमएम में आना चाहिए। इफ इट इज नॉट कमिंग यू विल नॉट गेट मार्क्स। परफेक्ट। देखो भाई, स्टेप नंबर 1 को टाइम लग गया यहां पर। स्टेप नंबर 1, मोमेंट, कुछ डाउट है तो पूछिए मोमेंट में। नहीं है, ग्रेट, चलो ठीक है। एम के बाद क्या फाइंड करना है? आई फाइंड करना है। स्टेप नंबर, आई विल, स्टेप नंबर 2, आई का फॉर्मूला बताइए। आई का फॉर्मूला, सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई बाय 64 d⁻⁴ माइनस स्मॉल d⁻⁴। अभी स्टूडेंट फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर एमएम यूज करना है क्या मीटर यूज करना है? भाई मीटर सिर्फ बेंडिंग में जरूरत है, बाकी सब जगह एमएम है। इसलिए आंसर डालते वक्त ऐसे डालो, पाई बाय 64 कैपिटल डी, कैपिटल डी मतलब 480, 480⁻⁴ माइनस स्मॉल डी कितना है भाई? 50, 450, कन्वर्जन नहीं करना है। Okay, so here will be your answer 480⁻⁴ minus 450⁻⁴ into pi by 64। mm में चाहिए, बिकॉज m अपॉन आई सिग्मा बी अपॉन वाई है, mm में रहना चाहिए। ओके, पंकज का आंसर है 592, गुड, इट्स करेक्ट आंसर। 592.87 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴, यह हुआ mm⁻⁴। हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, स्टेप थ्री क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 3 में y फाइंड करना पड़ेगा। y इज वेरी सिंपल, y मतलब कैपिटल D/2, हाफ डिस्टेंस रहेगा। देखिए देखिए यहाँ पर जो d है 480, 480/2 मतलब डायरेक्ट लेता हूँ 240 mm। हाउ मच mm? 240 mm। आपको m फाइंड करना है, सो फॉर्मूला m अपॉन आई, m का वैल्यू कितना है बताइए? 25.02। okay, so I will write down properly 25.02 into 10⁻⁶ अपॉन आई का वैल्यू देखिए, आई का वैल्यू कितना है? 592.87 into 10⁻⁶ इक्वल्स टू सिग्मा बी, सिग्मा बी अपॉन वाई। वाई का वैल्यू ना है भाई 240, वाई का वैल्यू 240 है। टेल मी द आंसर ऑफ सिग्मा बी, सिग्मा बी का आंसर बताइए। I hope that you are understanding this very properly students। PYQ क्वेश्चन है, आ सकता है, रिपीट हो सकता है, 9 मार्क्स का सवाल है।
सिग्मा बी फाइंड कीजिए। ओके ओके, अफजल का है, पंकज का भी आया, क्या बात है, ग्रेट, गुड आंसर, परफेक्ट आंसर। सो जो आंसर है दैट इज 10.12 मेगा पास्कल, 10.12 मेगा पास्कल आंसर आया है। 12 मेगा पास्कल का आंसर आया हुआ है। Okay, don't worry to take the screenshot. We have the sorry, I will provide you with the एक्सप्लेन किए हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस में और 3 लेक्चर्स भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो इन दिस वे आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस प्लेन रिलेटेड न्यूमेरिकल, 7 to 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल गिव द लिंक टू दी पेड ऑनलाइन ग्रुप। अगर आपको आना है पेड ऑनलाइन ग्रुप में सो एक मैसेज कर दीजिए। ओके, नॉमिनल फीस भी आपको पे करना पड़ेगा, ग्रुप डिस्काउंट में मिल सकता है आपको। इन दिस वे वी विल सॉल्व मोर न्यूमेरिकल्स, होमवर्क के क्वेश्चंस भी रहेंगे। ओके, आई विल क्रॉस चेक दैट क्वेश्चन, आई विल मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पार्ट, और इस बार तो सॉम निकालना ही है। Okay, so it was nice teaching you guys. Thank you so much. If you have doubt, you